Yeah, very good morning to dear friends. I'm sorry that today I'm a little bit late to start this particular session. I don't know, there is some issue with live YouTube. So I'm recording this particular video and I'll share with you all later on. Okay. So let's begin with the session, that ER diagram. Today we have to focus much on relationship and attributes. I hope in my yesterday's session you might have seen this particular part where what is entity and what are the types of entities that we have seen. In ER model, there are basically four major components. Something that is shown in rectangle is normally known as, this officer is normally known as what? Entity. Whatever you can see into this diamond is normally known as relationship. Just a minute. So whatever you will see in a diamond is actually known as what? The relationship, and that is normally there to join two entities. Okay, so relationship is an association between two entities. We will focus much on this relationship today. Okay, and you can see something which is in the form of ellipse. Okay, that is normally known as attributes. Okay, so we'll focus more on attributes today also with relationship. Okay, so that we need to understand, and there are certain lines that is helping us to join with each and every component. So friends, what is important here is you need to understand the rectangular thing is normally known as entity. Then diamond is normally known as its main purpose is relationship. Ellipse, the main purpose is attribute, and the lines, data lines. Now you need to focus on what something which is what given in a double diamond, that shows that it is weak relationship. Something which is in double rectangle is known as weak entity, and something which is normal rectangle is either entity or it can be known as strong entity. So friends, we must know here that there are basically what types of entities. Okay, types of entities means we need to focus on entity, then types of entity. What are its types? So weak entity and strong entity. So this we have seen. Okay, so those who are not aware that what is strong entity, has a primary key. Primary key. Perfect, it has a primary key. Okay, and weak entity means what? It don't have any primary key, so that is weak entity. Next part comes relationship. Okay, relationship, here it is entity, it is normally shown by rectangle symbol, so I'm mentioning that also. Okay, it is shown by double rectangle. These notes will be helpful to you to identify, and this will be what? Single rectangle. Okay, then relationship is shown by diamond. Okay, it has types based on cardinality. Now this cardinality word is known to you in case of discrete mathematics. Okay, so this is ultimately what? 1 to 1, 1:1, 1 to many, many as to 1, and many as to many. These two things are almost similar. Okay, these two things are almost similar. That is what? 1:m or m:1. So it is normally treated as only one. So there are basically three types. One is 1:1, 1:m, or m:1 and m:m. M means what? Many to many. One stands for 1 to 1, 1 to many, many to 1, and here many to many. So what it signifies, that I will tell you, okay, in my this particular session today. Okay, then there is known as attributes. Okay, attributes also has various types: single value and multi-value, simple attributes and composite attribute, then derived attribute, and finally null attribute. So these are the types of what? Attributes. So we will focus much on this particular part today. Okay, so let's start with the association, that is ultimately what?
relationship. So we'll focus on this particular part today, much on what the relationship and attributes. So let's move. What is relationship? Relationship is an association among several entities. Okay, जैसे कि ये दो entities यहाँ पर है, Bob and Alice. Bob is student and Alice is what? Teacher. So Bob and student and a teacher has some relationship. That is what advisor means. I'm advising you on anything related to what? DBMS. Okay, so subject is what? DBMS, where I'm advising you. So it is instructor entity, it is student entity, and this is relationship set, which is actually what this red diamond is saying, that advisor is relationship. That is an association between student and teachers. So that you need to understand. Okay, student and teacher. This is known as relationship. Now, relationship set advisor, you can see that if you observe, this is instructor, one-to-one. This instructor is what? It is advising, that particular instructor is advising two students. It means that I can say this is one-to-many relationship, means one instruction, multiple students. See that today 93 students are there on what? This particular part. I request Botwe sir, allow everyone to the meeting today. Those who are in waiting, please allow them. Okay, so this is what I just wanted to mention, that one teacher today, I am a single teacher teaching you DBMS, and 93 students are there online. It means that there is relationship between me and you, and that relationship is known as one-to-many, because one teacher and multiple students, one instructor, multiple students. So this is the same kind of relationship. When some students are coming to me, okay, when some students are coming to me, that is normally known as what? One-to-one. Somebody is coming to me or somebody is calling me on phone. Okay, that is normally known as what? One-to-one relationship, जहाँ पे एक ही student है और एक ही teacher है. Next part is degree of relationship set. Relationship set can be binary, it can be ternary, or it can be multi. Okay, binary relationship means what? It involve exactly two entities. Okay, so degree will be what? 2. So that is normally known as what? Binary relationship. दो ही relationship, दो ही entity के साथ में ये क्या करेगा? Join करेगा. And this is very much famous in case of what? In case of database system. Okay, so relationship between more than 2 entity sets are very rare. These are rare, but binary is what normally observed. Okay, there may be ternary relationship. For example, suppose I am the instructor. Okay, I am teaching you what? I am teaching you one particular subject. Okay, suppose instructor is there. Okay, then students are there, courses are there. Okay, so what is course that I am teaching you is DBMS, and that is the relation. This is the relation between you and me, that is DBMS. If the subject is changing, for example, if subject is IoT, then the person will be different. If the subject is, let's say, SPOS, then the person will be different. Okay, if the subject is data structure, then the students will be different and teacher will be different. So likewise, changes will come. So dear friends, you need to understand from this that ternary relationship here will show you that suppose student is there, instructor is there, and some students are guided by instructor by using project. Okay, so third relationship will be there, means this relationship is actually connected with 3 entities, and that is the reason it is known as ternary relationship. तो कितने ये रिलेशनशिप जो है वो कितने एंटिटीज को कनेक्ट करता है, उसके ऊपर उसको डिपेंड करेगा कि वो बाइनरी है, टर्नरी है, या और भी कुछ आगे एअरी या एनअरी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल एंटिटीज को यदि ये रिलेशनशिप कनेक्ट करता है उतना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उतना अरी वो हो जाएगा. Now the mapping cardinality is important here. Okay, it expresses the number of entities to which another entity can be associated with. Okay, so what is important here? The most useful is binary relationship. अब यहाँ पर आप यदि देखोगे mapping cardinality types means what? One-to-one that I have already told you. That is, if you are calling me and there is single call, one student is calling one teacher, that is known as one-to-one relationship. Okay, one-to-many. Your current example is what? One-to-many, where single teacher and multiple students. Many to one can be same. Suppose you all are giving me some questions and I am answering you. That indicates it is many to one. Many to many means what? Multiple teachers and multiple students. In a day, if you observe,
multiple teachers are teaching to multiple students, so that can be many to many. सेम आप हॉस्पिटल का भी एग्जांपल लीजिए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सिंगल डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है 1 to 1. 1 to many मींस व्हाट, एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट को क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है. ओके, मेनी टू वन मींस व्हाट, मल्टीपल पेशेंट एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं. मेनी टू मेनी मींस व्हाट, देखिए ऑपरेशन थिएटर में जब हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो मल्टीपल डॉक्टर्स वहां पर आते हैं. सो मेनी, आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपको ये कल्चर देखने के लिए मिलता है कि मेनी डॉक्टर्स आर देयर एंड मेनी पेशेंट्स आर देयर, सो दैट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, so this is about mapping cardinality, 1 to 1, 1 to many to 1, many to many. Any difficulty here with this? Any difficulty? No, sir. Fine. Should I move ahead? Yes, sir. Okay. Next part is mapping cardinality constraints. Now I'm talking about 1 to 1 is normally shown like 1:1. Okay, and here you will see that this particular diagram, one student, one teacher. Okay, one student, one teacher. And arrow is indicated. This arrow indicates that, this arrow is indicating that it is 1 to 1. जहां पर arrow आएगा वो 1, arrow नहीं आया यानी क्या, many. So ये हो गया 1 to 1. Okay, इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ. 1 to 1 रिलेशनशिप, यानी हम लोग यदि बोलते हैं कि स्टूडेंट्स फैकल्टीज को फोन कॉल कर सकते हैं, कैन बी 1 to 1 रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, मेनी, 1 to many, यानी क्या, 1 स्टूडेंट एंड मल्टीपल टीचर. सी दैट एरो जहां पर आ गया वो 1, जहां पे एरो नहीं है वो क्या हो गया, यहां पर एरो नहीं है वो क्या हो गया, मेनी. सो इट कैन बी इंडिकेटेड यूजिंग n. ओके, मेनी इज इंडिकेटेड यूजिंग n. तो यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या बन गया आपका, दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप विल बिकम व्हाट, मल्टीपल टीचर्स एंड 1 स्टूडेंट. ऐसा कब होगा, जब एक ही स्टूडेंट मल्टीपल टीचर को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, या एक ही टीचर मल्टीपल स्टूडेंट के, सॉरी, एक ही स्टूडेंट मल्टीपल टीचर्स के पास जा रहा है उसके डाउट्स लेके. Can be that example, that is 1 to many. Okay, next is many to 1, multiple students and one single teacher. current example is matching with this, you know, है ना. current example यानी क्या, मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो सिंगल टीचर एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स, n स्टूडेंट्स. so 98 अभी काउंट मुझे दिख रहा है, यानी ऑलमोस्ट 97. Okay, students are there and one teacher is there, so that is normally known as what, relationship known as many to 1. 1 to many और many to 1 एक ही बात है, कैसे आप पढ़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर एरो चाहिए था दोस्तों. ओके, ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एरो आना चाहिए था. ओके, सो माइंड वन थिंग दैट हियर इट शुड कम लाइक एरो. ये एरो होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है ना और ये मेनी है. ओके, मेनी की जगह पे एरो नहीं आएगा, 1 की जगह पे क्या आएगा, एरो आएगा. ये नोटेशंस आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके, so next relationship is many to many. Okay, this is known as what, many to many. ये many to many क्या बोल रहा है आपको, multiple students and multiple teachers will be there. Okay, यानी हम लोग देखिए प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चलता है, ओके, या सेमिनार का काम चलेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर होते हैं एक ही लैब में, और बहुत सारे टीचर्स भी वहां पर आते हैं, उनके गाइड वहां पर आते हैं. that kind of relationship is known as what, many to many. तो many to many के लिए हमेशा प्रोजेक्ट को याद रखना, तो आपको इजी हो जाएगा याद रखने के लिए. So that is many to many. Now we have to focus much on what, the attributes today. Okay, this is all about relationship. Now we will focus on what, attributes. Now there are basically different types of attributes. I have already shown you all the types. That is simple attribute, composite attribute, single value attribute, multi-valued attribute, derived attribute, and finally null attribute. So I'll show you what is simple. Simple यानी क्या, रोल नंबर. सिंपल है, इसका और कोई डिवीजन कर सकता है क्या रोल नंबर का, नहीं. लेकिन नेम का डिवीजन हो सकता है. कैसे, आपका फर्स्ट नेम बोलिए, आपका लास्ट नेम बोलिए, है ना. तो कई बार देखिए कि कोई आपको रोल नंबर पूछेगा तो कंफ्यूजन नहीं आता, आप एक ही वैल्यू बोलते हैं. लेकिन नाम पूछा तो आपको कंफ्यूजन होता है कि यार फर्स्ट नेम पहले बोलूं, लास्ट नेम बोलूं, कौन से फॉर्म में बोलूं, पूरा नाम बोलूं या सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम ही बोलूं. काफी कंफ्यूजन आपको होता है, बिकॉज इट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. ओके, ये एग्जांपल है आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट का, जहां पे आपको समझ में आएगा कि नेम हैव 2 फील्ड्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. आप मिडिल नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. Okay, so this is composite attribute. Here name is composite attribute, okay, because it is having combination of 2 sub attributes, first name and last name. I hope it is clear. समझ आ रहा है दोस्तों, ये वाला जो भी नेम, हाँ, तो ये नेम वाला जो एट्रीब्यूट है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये नेम वाला एट्रीब्यूट जो भी, ये क्या है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है. यहाँ पे
जो क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ टू सब एट्रीब्यूट्स. Which two sub attributes? Name is taking care of first name and last name. So that is known as composite attribute. तो composite attribute यानी क्या? It is ultimately collection of, okay? It is collection of two or more simple attributes. Okay? It is collection of two or more simple एट्रीब्यूट्स. तो आपको ईआर डायग्राम जब ड्रॉ करना होता है, कंपलसरी क्वेश्चन आपको ईआर डायग्राम के ऊपर आता ही है दोस्तों. कई बार आपको इंटरव्यू में भी ईआर डायग्राम के बारे में पूछा जाता है, प्रोजेक्ट में भी आप लोगों को ईआर डायग्राम जो भी हो कंपलसरीली क्या करना है, ड्रॉ करना है. तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इवन गेट एग्जामिनेशन के ऊपर भी ईआर डायग्राम के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं. सो कंपोजिट एट्रीब्यूट यानी क्या, इट इज अल्टीमेटली व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ टू और मोर सिंपल एट्रीब्यूट. सिंपल एट्रीब्यूट यानी क्या, आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, these are all known as what, simple attributes. Next is what, your single value multi valued attribute. सिंगल वैल्यू यानी क्या, जिसका सिंगल वैल्यू आएगा. यदि रोल नंबर मैंने आपको बोला तो आपके पास एक ही रोल नंबर है, लेकिन फोन नंबर बोले तो क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज आते हैं. सर मेरा ये मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, मोबाइल नंबर 3, आजकल बहुत मोबाइल नंबर आपके पास होते हैं. दैट इज नोन एज मल्टी वैल्यू. लेकिन ऐसा कोई है क्या कि मेरे बर्थ डेट 2 है, 3 है, 4 है? नो, इट इज हैविंग सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. देयर विल बी ओनली वन एट्रीब्यूट. सो रोल नंबर एक ही आएगा जब भी पूछा जाएगा. सो इट इज नोन एज सिंगल वैल्यू. इसका नाम क्या आएगा, दिस रोल नंबर इज नोन एज, ओके, रोल नंबर इज नोन एज इज सिंगल वैल्यू, क्योंकि इसको एक ही वैल्यू है, इसको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोला जाता है रोल नंबर को. ओके, नाउ मल्टी वैल्यूड मींस व्हाट, ultimate definition will be of that will be what, it is again combination of or collection of two or more values. Okay, two or more values. Okay, तो ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स और आ सकते हैं दोस्तों, जैसे फोन नंबर है, और कौन से एट्रीब्यूट आ सकते हैं कि जहां पे मल्टीपल वैल्यूज आती है? कैन एनीवन? एक स्टूडेंट के मल्टीपल वैल्यूज होते हैं. कैन एनीवन? सर हॉबीज. Yes, perfect. Hobbies can be what? Multi-valued attribute. Very perfect. Next. Or यूनिफॉर्म. हाँ, यूनिफॉर्म यानी समझा नहीं मैं. यूनिफॉर्म यानी एक्सप्लोर कॉलेज में अलग, घर पे अलग. Okay. So okay, fine. Okay, I'll give you some simple example of, let's say, address. Okay, what it will be? Address कौन से टाइप का होगा? Yes, permanent, temporary. परमानेंट एंड करंट. Right, it means that address can be what, multi-valued as well as composite. ये दोनों बढ़िया एग्जांपल है. एड्रेस यानी क्या, एड्रेस आपका ये ऐसा फील्ड है कि ये मल्टी वैल्यूड भी आएगा. एड्रेस इज मल्टी वैल्यूड. क्यों? बिकॉज आपके पास मोर देन वन एड्रेस होते हैं. ओके, और ये आपका कंपोजिट भी है. ओके, ये कंपोजिट भी है. कंपोजिट क्यों? क्योंकि हम लोग एड्रेस में कैसा देते हैं, हमारा फ्लैट नंबर रहेगा या बंगलो नंबर रहेगा, बंगलो नंबर आएगा. ओके, देन नेम ऑफ बंगलो, देन व्हाट, स्ट्रीट. ओके, देन सिटी. लाइकवाइज हमारा एड्रेस आएगा. इसका मतलब क्या हो गया, इट इज कंपोजिट आल्सो. व्हाई कंपोजिट? वेरी सिंपल. व्हाई कंपोजिट? बिकॉज इट हैज मोर देन वन fields, that is bungalow number, name, street, city, etc. So address can be composite. Okay, it can be composite having different things here. For example, यदि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं कि यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर और कुछ चीजें आएगी, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में. Why? Because this address is composite attribute. तो ये हो गया, ये कंपोजिट हो गया. Okay, now I'll make it what, I'll make it double ellipse. ये तो कंपोजिट हो गया. और एक एग्जांपल मैं इसमें डाल रहा हूं. मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं क्या कर रहा हूं, मुझे, हाँ, ये वाला आप ऐसे समझिए कि ये मल्टी वैल्यूड भी है. दिस इज आल्सो मल्टी वैल्यूड. डबल एलिप्स यानी क्या, मल्टी वैल्यूड. तो ये मल्टी वैल्यूड भी है क्योंकि एक से ज्यादा एड्रेसेस आपके रह सकते हैं. सो दिस इज वंडरफुल एग्जांपल ऑफ एड्रेस वेयर इट कैन बी मल्टी वैल्यूड और इट इज कंपोजिट. So that you need to understand. तो यहाँ पे नेम जैसे कंपोजिट है, आपका एक ही नाम होता है, इसलिए ये सिंगल यहाँ पर आएगा.
है ना, सिंगल वैल्यू है नेम का, लेकिन नेम में मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल सब पार्ट्स है, दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सो इट इज कंपोजिट। तो नेम आपका क्या बन गया, इट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। फोन नंबर आपका जो भी है दैट इज व्हाट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। व्हाई? बिकॉज इट हैज व्हाट, मोर देन वन फोन नंबर आपके पास हो सकते हैं, इसलिए वो मल्टी वैल्यूड हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि कौन सा मल्टी वैल्यूड आएगा, कौन सा ही आएगा। तो एक गेम आप लोग प्ले कर सकते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे आपको एक जस्ट क्या दे रहा हूँ, नाम लिखता हूँ, आप बोलिए ये मल्टी वैल्यूड है या सिंगल वैल्यूड है या क्या है। ओके, मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, फादर्स नेम, single value. perfect. Okay, father's name will be what, single value. Okay, child's name, Multi-value. 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 perfect, it is what, multi-valued. Okay, college name, Multi-valued. yes, because you might have done diploma, then college name can be different. You might have what done 11 12 science, college name was different, so likewise it can be what, it can be multi-valued. Perfect, right? So this way we can identify what, various things. For example, your age, tell me what is it. Single value. Single value. Yeah, so always remember here age is normally known as derived attribute. ये नया है, ओके, इसलिए मैंने डाला हुआ था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्या होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, है ना। देखिए आपके पास यदि बर्थ डेट है और आपके पास आज का डेट है, तो आप लोग एज क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं ना, डिराइव कर सकते हैं ना बर्थ डेट के थ्रू, सो इट इज नोन एज व्हाट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो आने वाले इसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आई होप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके, अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट के। ओके, कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताना रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको डालते जा रहा हूं कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में। सपोज किसी का शादी हो जाता है, तो एनिवर्सरी डेट, बोलिए कंपोजिट और सिंगल, So single कंपोजिट और value. सिंपल, Single. सिंपल, परफेक्ट, इट इज व्हाट, सिंपल। ओके, एड्रेस Composite. कंपोजिट, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को, एड्रेस विल बी व्हाट, कंपोजिट। ओके, सीट नंबर, Single value. single value. Okay, your seat number is what, single value. Aadhaar card number, Single value. Single. single value. PAN card number, Single value. Single value. very good. So now you understood the important, like you can anytime identify like कि किसको हम लोगों को composite बोलना है, किसको single value बोलना है, ये depend करेगा। Is that clear to all now? So address can be multi-value as well as Yeah, it is composite. na? combination of both. Okay, that is what the composite as well as what, multi-valued. फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल में सिर्फ कंपोजिट के बारे में पूछा था, तो आप लोगों ने उसको सही दिया था, लेकिन मैंने एग्जांपल देते वक्त आपको बोला था कि दिस इज आल्सो मल्टी-वैल्यू एज वेल एज व्हाट, कंपोजिट। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, जैसे नेम है, सिंगल ही नाम होता है तो सिंगल ही आएगा, लेकिन आपको यदि लगा कि आपने एड्रेस लिया है, तो एड्रेस को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टी-वैल्यूड भी दिखाना पड़ेगा और उसको सब एट्रीब्यूट्स दिखाने पड़ेंगे, यानी वो कंपोजिट भी बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yeah, fine. So this is known as multi-valued attribute. So let's move on the next attribute, that is known as derived attribute. Derived attribute यानी कि जो कंप्यूट करते आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एज लिया, मैंने आपका मान लो एज ये नाम का फील्ड लिया। ओके, एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपने एडमिशन लिया। ओके, आपने एडमिशन जो लिया, तो मुझे आप बोलिए, कोई बता पाएगा आपका एज आप में से? कैन समवन विल टेल मी द एज? 21. हाँ, 20. So सॉरी, एनीवन? 21. 21। आप मुझे बताइए यार, आपका एज कैसे बता पाते हैं यार? मुझे तो कोई किसी ने क्वेश्चन किया ना एज का, तो मुझे मुश्किल है एज के बारे में बताना। व्हाई? बिकॉज एज इज बेसिकली कंपोजिट एट्रीब्यूट। आर यू एग्री विथ मी? कंपोजिट क्यों? क्योंकि एज में क्या आएगा, ईयर आएगा, year plus month. मंथ आएगा, डेज आएंगे, ओके, आवर्स आएंगे, मिनट्स आएंगे, सेकंड्स आएंगे। आप जब तक बोल रहे हैं तब तक आपका आगे आयु आपकी बढ़ती जा रही है, सेकंड आपका आगे जाते जा रहा है। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? ओके, सो नॉर्मली एज में लॉजिकली एज क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जब मैं सिंपली आपको ये बोलता हूं कि टेल मी योर एज इन ईयर्स, ओके, एज इन ईयर्स, then answer can be perfect, that is what, 21.
Okay, but when I'm in general, I'm asking you what is age, so tough to answer, you know, it is very tough to answer, trust me. Clear to you all? Okay, now why age is known as derived attribute? Why it is derived? Because if you take today's date minus birth date, what you will get? What you will get? आज का डेट माइनस बर्थ डेट करोगे तो क्या आएगा? आपका एज आ जाएगा ना दोस्तों. हेलो, आर यू ऑल देयर? Yes, sir. ओके, आपको आपका एज निकालने के लिए बोला और आपको सिर्फ बर्थ डेट दिया है. आप कैसे निकालोगे? टुडेज डेट माइनस बर्थ डेट, सो दैट यू विल गेट व्हाट? एज. एंड दैट इज द रीजन दिस इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट. तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट रखना चाहिए क्या? गलत कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए आपका एज, आप में से कोई किसी ने तो भी अभी मुझे बताया था कि मेरा एज 21 है, राइट? ओके, आप मुझे बताइए जब आपने एडमिशन लिया था तब आपका क्या एज था? 18, sir. 18. अब देखिए क्या होगा. लॉजिकली कौन सा वैल्यू एज में स्टोर हो जाएगा आपका? 18 वाला, बराबर है. आपका बर्थ डेट जो भी है, जो भी कुछ आएगा, मान लीजिए 1 और जो भी कुछ आएगा यहाँ पे, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं. ईयर कुछ तो भी आ जाएगा. ओके, सो मुझे ये बताइए दोस्तों, यदि 18 आप लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर दिया तो आज की डेट में आपका एज कितना हो चुका है? 21. लेकिन वो डिस्प्ले क्या करेगा? 18, which is wrong. I hope you are getting me. Yes, sir. Okay, when I display 18 every time, how it can be 18? It cannot be 18 because every time it is changing, right? Every year it is changing. In that case, only one should include what? Birth date as a field. बर्थ डेट को जैसे ही ले लेंगे तो एज कैसे डिराइव करेंगे? यानी एज को निकाल देंगे हम लोग. एज इस फील्ड को क्या करेंगे? हम लोग रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे क्या डाल रहे हैं? बर्थ डेट डाल रहे हैं. और जब भी हम लोगों को बर्थ डेट बोला कि कैलकुलेट कीजिए, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज व्हाट? टुडेज डेट माइनस बर्थ डेट. इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट? Yes, sir. Yes. I'll give you a couple of examples. Suppose I have one particular table. Let's say I have item as a table having item code, then quantity, price, amount. Now tell me, I'll ask you one by one. What is code? What type of attribute it is? Code. So single value. Perfect. It is single value. Okay. As well as it is simple attribute also. Single भी है और simple भी है. Agree? क्योंकि Yes, इसको sir. और कोई further हम लोग divide नहीं कर पा रहे. Now tell me what is quantity? Multiple. No, it is single value. Okay. Why? क्योंकि at a time जो quantity वो hold करेगा ना, that is what current quantity, current balance कितना है. Okay, that is what single value. Clear? Now price. Again single value. Okay, now tell me amount. So मल्टी वैल्यूड. अमाउंट कैसे आता है? कैसे कंप्यूट करते हैं अमाउंट? कैन एनीवन विल टेल मी? depends on the quantity. क्वांटिटी इनटू प्राइस. सिंपल है ना? ऐसे समझिए कि आप लोगों ने 10 नोटबुक्स लिए जिसका प्राइस 10 रुपीज है या 20 रुपीज है, तो अमाउंट कैसे आएगा? हाउ अमाउंट विल कम? 10 इंटू 20, यानी क्या बनेगा? 200. समझ आ रहा है या नहीं आप लोगों को दोस्तों? Yes, sir. देखिए, मैंने एग्जांपल आप लोगों के सामने दे दिया. हाउ आई एम कंप्यूटिंग अमाउंट? जस्ट बाय टेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, दैट विल गिव मी व्हाट? अमाउंट. टोटल अमाउंट अलग होगा मेरा, टोटल अमाउंट अलग होगा. तो हम लोग जब भी बिल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस, ऐसा ही करते हैं ना? होप यू रिमेंबर दिस. Yes, sir. Fine. So that way we can able to do that. One more example I can quote here is, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों, मैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बारे में ही बोल रहा हूं. ओके, आपको फिर से मैं बता दूं कि मैं, मान लीजिए आपका जो आपके सारे मार्क्स मेरे पास स्टोर्ड है, आपका जितना भी सब्जेक्ट है, ओके, या कोर्सेस है. कोर्स 1 के मार्क्स है, कोर्स 2 के मार्क्स है,
आजकल तो 100 ही आ रहा है। कोर्स 3 के मार्क्स है, मान लीजिए 100। ओके, सो व्हाट विल बी योर परसेंटेज? कैन एनीवन विल टेल मी? 90 plus 100 plus 100 upon Perfect. It is ultimately what? C1 plus C2 plus C3 upon what? 300. 3 or 300? into 300 into 100. into 100 because it is percentage, correct? So I'll make like this. Are you agree with me? yes ये वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, तो दोस्तों आप मुझे बताइए परसेंटेज स्टोर करने की जरूरत है क्या? फिर परसेंटेज स्टोर करने की जरूरत है क्या? इफ आई हैव दिस 3 फील्ड्स, जस्ट टेल मी, इफ आई हैव दिस 3 फील्ड्स, इज इट एसेंशियल टू स्टोर परसेंटेज? yes sir No. No, No, sir. it is not needed. Why? Because it can be anytime computed by using this formula. हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? परसेंटेज विल बी डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, योर परसेंटेज विल बी व्हाट? इट विल बी नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और ये कैसे डिराइव किया जाएगा? बाय यूजिंग C1, C2, C3 एंड विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी कैन एबल टू डिराइव दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। इसलिए इसको हम लोगों को कंप्यूट नहीं करना है। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया क्या आप लोगों को? yes sir Yes, sir. Yeah, I'll give you one more complicated example. थोड़ा सा लाइट कॉम्प्लिकेट करता हूं। ऐसे समझ के चलिए कि मैंने आपको, जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि किरण ये मैंने दिया, ये नाम मैंने दिया किरण। ओके, किरण के यहां पर मिस लगाना है या मिस्टर लगाना है, ये आपको मैं दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है जेंडर, सपोज फीमेल बोला तो आपको क्या करते आएगा? किरण की जगह पे आपको क्या करना है? कॉन्कैटनेट करना है ना। क्या कॉन्कैटनेट करोगे? देखिए यहाँ पे मैं Miss. आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इफ जेंडर इज और जेंडर इक्वल्स टू मेल, ओके, आप क्या करेंगे? आप नेम को क्या ऐड करोगे? नेम में क्या कॉन्कैटनेट करोगे? आप मुझे बताइए। Mr. कॉन्कैट Mr. नेम, ओके, इसके पहले आपको मिस्टर चाहिए ना, मिस्टर, दिस विल बिकम योर नेम। Okay, this will become what? Your name. Else क्या बनेगा? क्या बनेगा? Miss. Perfect. तो यहाँ पे मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा? My life will be what? Simple. By doing this, मुझे यहाँ पे क्या करना है? Miss, finished. हो गया, done. Is it clear to you? तो इसमें क्या हुआ? ये मिस्टर और मिस डिराइव करते आया ना मुझे, है ना? मिस्टर और मिस मुझे क्या करते आया? डिराइव करते आया ना। हाउ आई हैव डिराइव्ड? बाय यूजिंग वन मोर फील्ड, दैट इज जेंडर। जेंडर के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि ये मिस्टर है या मिस है। इज दैट क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं आपका लाइफ। अब मुझे क्या चाहिए? मिस। आजकल मिस और मिसेस एक ही हो जाता है, लेकिन आजकल मिस और मिसेस में डिफरेंसेस चाहिए मुझे। क्या करना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा मिस और मिसेस का डिफरेंस? marriage status परफेक्ट। हमें और एक फील्ड लेना पड़ेगा, दैट इज मैरिज स्टेटस। इफ इट इज व्हाट? यस, इट मींस दैट इट विल बी मिसेस। लेकिन इसके साथ में और क्या लेना पड़ेगा? इसके साथ में और क्या लेना पड़ेगा? एंड देयर विल बी व्हाट? जेंडर शुड बी व्हाट? फीमेल। बराबर ना? नहीं तो जेंट्स भी मैरिड होगा तो उसको लगा देंगे मिसेस आप लोग। दोस्तों समझ में आया? yes sir then it will be misses, else it will be what? आपको स्टेटस चेक करके यहां पर डालते आएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों। आई होप इट इज क्लियर। तो हम लोगों ने यहां पर जैसे मिस या मिसेस को क्या किया? हम लोगों ने डिराइव किया। तो यहां पर मुझे ये बताना है, डिराइव्ड मींस व्हाट? एनीथिंग, ओके, एनीथिंग दैट कैन बी डिराइव्ड और एनीथिंग दैट कैन बी कंप्यूटेड। ओके, आप यदि उस चीज को कंप्यूट कर सकते हैं तो आपने उसको स्टोर करना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? डिराइव्ड एट्रीब्यूट, आई होप आई हैव गिवन सफिशिएंट एग्जांपल्स टू यू। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, so sir. derived attribute is shown by using dotted ellipse. कैसे दिखाया जाता है? डॉटेड एलिप्स के थ्रू आप उसको दिखाते हैं। जब डॉटेड एलिप्स के थ्रू उसको दिखाओगे, इसका मतलब क्या होगा? आप जब डेटाबेस में इसको कन्वर्ट करने जाओगे तब एज नाम का फील्ड नहीं लेते हैं। हम लोग हमेशा डिराइव्ड एट्रीब्यूट को क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। वी ऑलवेज ड्रॉप
the derived attribute. Why? Because it is computed by using birth date. Is that clear? Yes, sir. Okay, so I'll show you a live example. Okay, I'll open what access. MS Access में ओपन कर रहा हूं. ओके, हमारा स्टूडेंट डेटाबेस में यहाँ पे ओपन कर रहा हूं. ओके, ऐसे समझ के चलिए कि मैं और एक यहां पर क्या कर रहा हूं, डेटाबेस ले रहा हूं. आई एम क्रिएटिंग वन मोर डेटाबेस. ओके, उस टेबल का नाम मैं यहाँ पे रिनेम कर रहा हूं. सॉरी, उसको मैं क्या कर रहा हूं, डिजाइन व्यू में ओपन कर रहा हूं. उसका नाम दे देता हूं मैं आइटम मास्टर. उसको ओके बोल देता हूं. यहां पर एक आइटम कोड में ले रहा हूं, उसको मुझे प्राइमरी की करना है, मैंने कर दिया. ओके, उसके बाद यहां पर मैं बोल रहा हूं आइटम नेम, यानी उस आइटम का क्या नाम रहेगा वो मैंने ले लिया. उसके बाद उसका क्वांटिटी क्या रहेगा, ओके, वो ले लिया. ओके, उसको नंबर कर दिया. उसके बाद मैंने यहां पर डाल दिया प्राइस. ओके, यहां पर इसको भी नंबर कर दिया. दोस्तों, अमाउंट नाम का फील्ड मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं, वो मुझे ऑटोमेटिकली आना चाहिए. तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, सेव कर देता हूं. यहां पर चला जाता हूं, आइटम मास्टर में कुछ वैल्यूज डाल देता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बोल दिया आइटम नेम पेन, क्वांटिटी 100 है, प्राइस 10 रुपीज. यहां पर डाल दिया नोटबुक, यहां पर बोल दिया 200, क्वांटिटी है, उसका 20 क्या है, कॉस्ट है. बराबर है. अब दोस्तों, ये इतना मैंने कर दिया और इसको मैंने स्टोर कर दिया. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज I'll tell you the new thing here. That is what I'm using. One more thing, क्रिएट कर रहा हूं मैं. क्या क्रिएट कर रहा हूं, एक क्वेरी में बना रहा हूं. आई हैव टू डिजाइन वन क्वेरी. किसका, आइटम मास्टर का. तो मैंने आइटम मास्टर यहां पर सिलेक्ट किया. ओके, और मुझे क्या चाहिए, ये सारे फील्ड डिस्प्ले करने हैं. तो मैं यहां पे सारे फील्ड डिस्प्ले कर दूंगा. मुझे हर एक चीज चाहिए. ओके, मुझे हर एक चीज चाहिए. तो मैंने इसको बोल दिया क्लोज. अब मुझे हर चीज चाहिए, स्टार बोल दिया, यहाँ पे स्टार आ गया. या फिर आप इसको क्या कीजिए, स्टार की जगह पे आप क्या कीजिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से. ओके, यहां से भी इसको रिमूव कर देता हूं, ये स्टार निकाल देता हूं. और क्या करता हूं, एक एक फील्ड ऐड करता हूं. आइटम कोड चाहिए, नाम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, ये चाहिए, ये मैंने बता दिया. अब दोस्तों क्या हो रहा है, इसको मैं रन कर देता हूं. इसको मैं रन कर देता हूं. देखिए, मुझे वो वाला जो भी वैल्यू है क्वेरी के फॉर्म में दिख रहा है. आइटम मास्टर के सारे वैल्यूज दिख रहे हैं. अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एसक्यूएल व्यू में ओपन कर रहा हूं. ये आप लोगों को आगे जाके करना है. ओके, मैं इसमें अभी फिलहाल बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूं. सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि अमाउंट नाम का फील्ड कैसे आएगा, कैसे लाया, क्या लाया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो मुझे अमाउंट डिस्प्ले करनी है लोगों को. मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं. सी दैट आपको यहां पर अमाउंट नाम का फील्ड दिख रहा है दोस्तों. आर यू एबल टू सी दिस अमाउंट फील्ड? इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली. व्हाट आई हैव डन, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हेलो, Yes, sir. दिस इज नोन एज डिराइव्ड. ये कैसे किया उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए. दिस इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट. ओके, हाउ इट इज डिराइव्ड? बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटिटी इनटू प्राइस. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिल गया, अमाउंट. कर दिया मैंने यहां पर, वो सॉर्ट कर दिया. दैट इज, देखिए, 100 इंटू 10 बिकम्स 1000, 200 इंटू 20 बिकम्स व्हाट, 4000. ये ऑटोमेटिकली आया. कैसे आया? क्योंकि मैंने उसके लिए क्वेरी लिखा. क्या क्वेरी लिखा? तो मैंने यहां पर उसको बोल दिया कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो भी फॉर्मूला है, ये मैंने क्या कर दिया, किस तरीके से मैंने ऐड किया दोस्तों. तो यहां पर एज अमाउंट उसको बोला. तो ये जो भी है, ये मैं आपको चैट विंडो पे डाल देता हूं, ये वाला क्वेरी, तो आपको समझ में आएगा. फिलहाल आपको जब एसक्यूएल सिखाएंगे तब आपको ये क्लैरिटी आएगा. ओके, तो ये क्वेरी मैंने चैट विंडो के ऊपर डाला है. तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है, क्वांटिटी इनटू क्या किया, प्राइस, ये किया, तब जाके मुझे अमाउंट मिला दोस्तों. तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली अमाउंट नाम का फील्ड आ गया. दिस अमाउंट फील्ड इज नोन एज व्हाट, डिराइव्ड. Okay, so if you have any doubt you can ask, otherwise I'll show you what your attendance link. So please mark your attendance. Dear friends, you can mark your attendance now, and those who have difficulties can ask me. I'm sharing the attendance link on chat window also. So mark your attendance. If you have any difficulty, you can ask me just by unmuting.
हेलो यस, सर, कृपा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कृपा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड बिग सॉरी कृपा, आपकी आवाज क्लियर नहीं स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी बिग एंटिटी वाली स्लाइड ओपन करो ना। हाँ, सॉरी। दिस वन। सर द डायग्राम, हाँ, ये वाला। सर इधर डबल शिफ्ट डायमंड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये वाला, ये रिलेशनशिप जो भी है, ये रिलेशनशिप भी वीक है, ये दिखा रहा है। या जब भी आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ में वीक एंटिटी का रिलेशनशिप दिखाओगे, तब आपको डबल डायमंड डालना है। इसका मीनिंग ये होगा कि ये वीक, ये रिलेशनशिप भी कैसा है, वीक है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके सर, तो ये थैंक उसका यू। नोटेशन है डिस्प्ले करने का। थैंक यू सर। ओके फाइन, एनी अदर डाउट? ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपका काफी समय में ले चुका हूं। ओके, एंजॉय योर लंच, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, सॉरी इन नेक्स्ट वीक, बाय।